we'll be dealing in this second session of Indian Evidence Act Courtroom to Classroom series about the Ready Reckoner. This is exclusively for the prelims exams because we have seen the changing pattern of the prelims paper. From the last 3 to 4 years, we are able to see the question related to the index, the question relating to the section number, the question relating to the marginal heading. From UPJS 2022, we are continuously seeing the new version of the paper where we are able to find that 20% of the questions belongs to this particular pattern, right? And for this, we'll be dealing a crux of the overview. We'll be dealing the crux of the Ready Reckoner. Now, what does that mean? इसके अंदर we'll be looking into the what actually the Indian Evidence Act is all about by looking over the aspect of index. Now, what does it says? This is in regards to BSA and this is in regards to Indian Evidence Act as well. अब इस कल जो हमने इतना कवर किया था इसके अंदर कि व्हाट इंडियन एविडेंस एक्ट और व्हाट भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज ऑल अबाउट, we have seen each and every basic concepts which we need to require to read for the statute. We have covered each and everything for the same. अब इसके अंदर when we'll be moving, we'll be getting a word that is a fact. We'll be getting a word that is a fact. Now what actually the fact means वो हम definition clause में देखेंगे इसके. फैक्ट का मतलब क्या होता है वो सब हम इसको डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे. बट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर देयर इज अ वर्ड फैक्ट हैज बीन यूज्ड तो वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट. दो फैक्ट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया. व्हेन विल बी रीडिंग व्हाट एक्चुअली द फैक्ट इज तो हम वहां पे पढ़ेंगे फैक्टम प्रोबेंटम और फैक्टम प्रोबेंशिया क्या होता है. और जब हम फैक्ट एंड इश्यू पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा व्हाट एक्चुअली द फैक्ट एंड इश्यू इज एंड इश्यू ऑफ फैक्ट इज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट एंड इश्यू. क्योंकि जब हम सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं या सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखते हैं, इट सेज दैट the evidences may be given in fact and issue और relevant fact. तो हमें ये इसका आइडिया लेना भी जरूरी है कि फैक्ट एंड इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट क्या है. कल जब हमने ये क्वेश्चन देखा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज फुल्ली बेस्ड ऑन द 3 सेट ऑफ क्वेश्चन which says that कि how such evidences as to what facts to be introduced, how such facts to be proved and by whom and in what manner the evidences has to be produced. मैंने कहा था पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज फुल्ली कवर्ड ऑन these 3 basic aspect. उसके अकॉर्डिंग हमने we have seen the 3 fundamental principles of Indian Evidence Act which says that evidences must be confined to matter and issue. ये हमने कल कवर कर लिया था. Hearsay evidences must not be admitted and the best evidences must be given. We have seen these 3 fundamental principles. Now, if we move for this index section, we'll be getting to know कि अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज में देखने को मिलेगा. सेम लाइज विद दिस. अगर हम इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इट विल गो इनटू सेक्शन 2. बट क्वेश्चन ये नहीं आ रहा अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को उसी 3 पार्ट में, जिस 3 पार्ट में हमने क्वेश्चनिंग करी थी कि कौन से फैक्ट्स होने चाहिए, कौन से फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा और बाय whom and in what manner the evidences has to be produced, उसी के एस्पेक्ट में अभी हम देखें व्हाट आर दी फैक्ट्स. तो ये फैक्ट्स हमें इसी पार्ट की तरफ दिखाए जाएंगे. फॉर अस दिस इज आवर पार्ट 1. कौन से फैक्ट हो सकते हैं? वी हैव दी 7 फैक्ट्स ओवर हियर. एक होता है कनेक्टेड फैक्ट्स. वी हैव कनेक्टेड फैक्ट्स.
अभी कनेक्टेड फैक्ट्स क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूं इंडियन एविडेंस एक्ट के टर्म्स में, तो सेक्शन 6 to 15 हमें इसके बारे में बताएगा कि what actually the 6 to 16 actually will talk about connected facts. Now what does that mean? One, the fact is connected with the other fact. Does that? No, the answer is not. वन, अगर हम रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन भी देखेंगे तो हमें वहीं से आइडिया हो जाएगा व्हाट एक्चुअली द कनेक्टेड फैक्ट्स आर. अगर फॉर एग्जांपल इफ वी लुक इनटू सेक्शन 6 दैट इज रेस जस्ट टाइप, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन द सेम ट्रांजैक्शन, if something is happening into the same transaction, whether it happened to a different occasion, different time, whatsoever, or to the same time or the same occasion, but अगर वो same transaction में हो रहा है तो we have to consider it as a connected fact. अगर आप मेरे साथ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में चलते हो, तो अगर वो कॉन्स्पिरेसी डिजाइन की गई है सेम पैटर्न में, सेम फ्लो में और सेम ट्रांजैक्शन में, तो आपको आइडिया लगेगा दैट दिस बिकम्स अगेन अ कनेक्टेड फैक्ट. इफ वी लुक इनटू द कंडक्ट, whether it is under section 6 or whether it is under section 8 of Indian Evidence Act, सेक्शन 6 का जो कंडक्ट है वो बताता है स्पॉन्टेनिटी होना चाहिए, कॉन्ट्रावीनियस होना चाहिए. बट अगर सेक्शन 8 के कंडक्ट की बात करूंगा तो विल बी एबल टू नो कि वो प्रीवियस होना चाहिए, सब्सिक्वेंट होना चाहिए. जब मैं सेक्शन 6 में इसी को कवर करूंगा तो आप मेरे साथ आर वर्सेस बीडिंग फील्ड पढ़ेंगे. एक लैंडमार्क केस है, बार बार प्रीलिम्स में देखने को मिलता है और कई बार ये क्रिटिकली एग्जामिन करके भी मेंस में पूछ लिया जाता है. उसमें भी आप मेरे साथ देखेंगे कि वहां पे फैक्ट्स कहते हैं कि वो इंसान कह रहा है, ओ माय डियर आंट, सी व्हाट बीडिंग फील्ड हैज डन टू मी. तो वो भी उस इंसिडेंट के तुरंत बाद बता रही है कि दिस थिंग हैज हैपेंड विथ हर. नाउ दिस इज ऑल्सो अ कंडक्ट, बट दिस कंडक्ट इज immediate to the act, whereas in section 8 it is not so. So this is what actually the connected fact is. और ये हमें section 6 से 16 की तरफ दिखेंगे. The another fact which we have is the admitted fact. Now what does that mean? Admitted fact. आपने एक मैगजीन पढ़ी होगी अपने लॉ स्कूल्स में, या इफ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लैट, क्वी टेसिट कंसेंटायर विदितुर, दैट मींस साइलेंस ब्रीड्स कंसेंट. और जब आपने कुछ नहीं बोला, इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द सेम. बेसेला वर्सेस टैलेक्स का लैंडमार्क जजमेंट ऑन द सेम. बेसेला वर्सेस स्टर्न का लैंडमार्क जजमेंट है ऑन द सेम. अगर आप मेरे साथ डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे इसी एडमिटेड फैक्ट के अंदर, तो आपको पता चलेगा नेमो मोरिचर पार्सल मेंतरी. दैट मींस अ पर्सन हु इज ऑन द बेड विल नेवर टेल यू द लाई. तो अगर उसने कुछ भी बोला दैट दिस थिंग हैज हैपेंड टू मी बाय बिकॉज ऑफ दिस एक्ट ऑफ दैट पर्सन, इट विल बी एडमिटेड. अगर आप मेरे साथ कन्फेशन पढ़ेंगे तो कन्फेशन में वंस द पर्सन हैज कन्फेस्ड द part of it or the whole act of it, it will be taken into the consideration other than the retracted confession. तो आप इसको भी रेलिवेंट फैक्ट में कवर करेंगे. ये दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. मैं बीएसए में भी इसी को डील करूंगा. अभी एडमिटेड फैक्ट्स, हमने दो फैक्ट्स देख लिए रेलिवेंट फैक्ट में. एक फैक्ट तो हमारे सामने ये आया है कि वी हैव द कनेक्टेड फैक्ट. दूसरा फैक्ट हमारे सामने ये आया है कि वी हैव एन एडमिटेड फैक्ट. अब ये फैक्ट्स हमने देख लिए, बट व्हाट अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन? तो हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ नॉन विटनेस. You are not a witness, but you are giving a statement, reason being the act has happened on you. Or else I can say that you are telling the statement to someone else. यही तो होता है नेमो मोरिचर पार्सल मेंतरी. सेक्शन 32 ऑफ डायरेक्शन इनटू द एक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज वेरी कैटेगोरिकली ऑन दैट. यहां पे
आप प्यारे लाल का जजमेंट पढ़ो या किसी का जजमेंट पढ़ो, सारे विल से इट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। अगर मैं इसके बारे में भी आपको डील करूं तो इंडियन एविडेंस एक्ट तो बोल रहा है 5 to 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोल रहा है 3 to 49 और 50, 3 to 49 और 50 whatsoever it is, 50 है शायद, 3 to 50 whatsoever it is, अधिनियम इसकी डील कर रहे हैं। हमारे पास पॉइंटर्स यही है कि क्या हम इसका ओवरव्यू देख पाएंगे। हमें इतना पता चल गया दैट द मेन क्रक्स इज इनटू द होल इंडियन एविडेंस एक्ट इज द फैक्ट, और फैक्ट को हमने दो चीज में देखा, बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि फैक्ट हम कैसे ला सकते हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड हाउ टू गेट द फैक्ट्स। हमारा पहला क्वेश्चन जो कल हमारे सामने था, व्हाट फैक्ट मे बी यूज्ड इन एविडेंस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस फैक्ट का पता कैसे लगाएं कि ये हमारे एविडेंस तक के लिए रीच कर पाए। सी वी नीड नॉट टू जंप टू द एविडेंस एक्ट, वी नीड नॉट टू जंप टू द एविडेंस, वी नीड टू रीच टू द एविडेंस, व्हाट एविडेंसेस एक्चुअली मीन। तो एविडेंस के लिए हमें सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली द फैक्ट मीन, एंड वी हैव सीन द फैक्ट are of two types, fact in issue and the relevant fact, and the fact has been divided into 7 parts. We have seen connected facts, we have seen admitted facts, and we have seen the statement of non-witness. If we talk about this is 32 and 33. इसके बाद भी we have the statement under special circumstances. Now question come, what does that mean? अगर आप मेरे साथ सेक्शन 34 to 39 देखोगे तो आपको पता लगेगा, इफ देयर इज एनी पर्सन इज अ पब्लिक ऑफिसर, ही हैज मेड एनी एंट्री इनटू द रिकॉर्ड, तो वो जो पब्लिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है, एंड वंस ही हैज डाइड और समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो उसका वो रिकॉर्ड भी स्टेटमेंट कंसिडर होगा अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। यहां पे मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर किसी ने दे रखा है तो मैप, उसका स्टेटमेंट भी दे रखा है। वी हैव अ ब्यूटीफुल illustration under section 334, that is 34 of Indian Evidence Act. There is a person who cast a boat, और उसने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे थे अपनी डायरी के अंदर वहां पे, that whether the boat has moved to that direction or this direction, that needs to be considered if there would be any inquiry after a year. ये इलस्ट्रेशन यूज की गई है वहां पे। तो ये स्टेटमेंट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो आपने स्टेटमेंट दिए, वेदर दे आर रेलिवेंट और नॉट, will be considered under the examination of section 5 to 55 or 6 to 55 of Indian Evidence Act. Now you have to see that as a part or not of the relevancy of the fact. या ये तो हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, what does that mean, how to check the relevancy of it. If this is 34 to 39. Now if we look into the another segment, that is judgment. Now this becomes very important over here. Judgment भी आएगा आपके पास। आप सेक्शन 40 से 44 में मेरे साथ ये ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यू विल बी एबल टू सी व्हाट डज, हाउ इट बिकम्स अ रेलिवेंट फैक्ट। क्या किसी केस में पहले जो जजमेंट आ चुका है वो आने वाले केसेस में यूजफुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, एड कर सकता है, एसेसरी बन सकता है? द जनरल आंसर सेज द नो। बट इफ समथिंग इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ रेस जुडिकाटा, तो प्रीवियस सूट बाढ़ हो जाता है। आपका प्रीवियस सूट उसके लिए बार हो जाता है, और अगर आपका प्रीवियस सूट उस पर बार हो जाता है तो क्या बिकॉज ऑफ दैट प्रीवियस सूट, क्या आप अपना सब्सिक्वेंट सूट ला सकते हैं? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं ला सकते? बिकॉज द जजमेंट सेज दैट द मैटर हैज बीन सॉर्टेड आउट, मैटर हैज बीन एडजुडिकेटेड। तो बॉस क्या ये जजमेंट आपका रेलिवेंट नहीं हो गया क्या? मुझे ये बताओ, हुआ ना जजमेंट आपका रेलिवेंट? दिस इज व्हाट सेक्शन 40 इज सेइंग। एक्सक्यूज मी।
This is what your judgment in fact is saying, and this is what your relevant fact. मैंने कहा if there is a judgment of this previous suit where the matters and the matter is a substantial in issue is same, relief is same, incidental issues are same, तो क्या वो बार्ड नहीं हो जाएगा आपका सब्सिक्वेंट सूट? होगा कैसे बॉस? उस जजमेंट की वजह से होगा, बिकॉज द जजमेंट हैज बीन केम आउट, द मैटर हैज बीन एडजुडिकेटेड बिफोर द कोर्ट बाय द कोर्ट. तो वो उस जजमेंट की रेलिवेंसी नहीं हो गई क्या? द जजमेंट इज रेलिवेंट ओवर देयर. तो ये हम सेक्शन 40 से 44 में देखेंगे. अगर वो रेलिवेंट हो गया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट फॉर यू. मैंने कहा व्हाट फैक्ट्स में बी यूज इन एविडेंसेस, यही तो फैक्ट्स हैं बॉस. मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर यही तो है. अगर मैं इस पार्ट 1 को छोड़ के आपके सामने ये लिख दूं, व्हाट फैक्ट्स में बी यूज्ड इन एविडेंस, यही तो आंसर दे रहा हूं मैं आपको इतनी देर से. नो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मैंने कहा रेलिवेंट फैक्ट में आपके पास कनेक्टेड फैक्ट हो सकता है, एडमिटेड फैक्ट हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ नॉन विटनेस हो सकता है, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, जजमेंट इन फैक्ट हो सकता है. अगर आपने पेपर दिया आरजेएस का दिया, 10 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए, आप रिट में गए अंडर 226 Jaipur bench, Jodhpur bench, wherever you have filed, or if it is happening in MPCJS, MPCJ, you have filed the writ. Questions came before the court. आप क्वेश्चन कोर्ट ने बोला साहब हमें तो इतना आता नहीं है, विल सेट अप अ कमिटी. दैट कमिटीज नेम इज एक्सपर्ट. योर लॉर्डशिप इज टेकिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन इनटू अ मैटर जिसमें वो खुद ही एक्सपर्ट है. उन्हें वो लॉ नहीं आ रहा क्या? whether they cannot see the question and refer the bare act, but they are doing so. They are sending the matter for the expert opinion. अब एक्सपर्ट ओपिनियन ने थोड़ी ना पेपर बनाया था. एक्सपर्ट ओपिनियन विल नेवर गिव यू द करेक्ट आंसर, विल गिव यू द अप्रोप्रिएट आंसर. तो ये ओपिनियन रेलिवेंट होगा. Your lordship will take the advice or will take the opinion of expert and will consider the result of the writ petition. That will be the subject to the outcome, और वो outcome में consider कर दिया जाएगा. तो जब जज साहब ये रेलिवेंस इसको रेलिवेंट मान रहे हैं तो कोई तो ग्राउंड है. दैट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. आपके सामने कोई तो इसकी रेलिवेंसी बन रही है. दिस इज व्हाट डील इनटू 45 to 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर मैं इसके आगे भी चलूं तो द क्वेश्चन कम्स इफ रेलिवेंसी की अगर बात करूं तो देयर इज अनदर पॉइंट, दैट इज अ कैरेक्टर. आई हैव कमिटेड अ क्राइम, आई हैव कमिटेड अ क्राइम. और मैं पहले से हैबिचुअल ऑफेंडर भी हूं, दो क्राइम पहले कमिट कर चुका हूं. does those two crimes will impact my third crime? The answer is no, not at all, because your bad character will never be seen into the criminal cases. क्या गुड कैरेक्टर देख लोगे मेरा क्रिमिनल केस में? बिल्कुल देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे. दैट नीड्स टू बी कंसीडर डाउन. अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे जजमेंट राइटिंग तो I'll be telling you in last we write into the judgment writing about the probation if it is possible in light of section 360 of CRPC and in light of probation of offenders act. अब जब मेरे साथ वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट देखोगे तो हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे हम लिखेंगे द लर्नेड काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड or the learned advocate for the accused is stated that this is the first crime of the accused and the person is of a good nature and has a good reputation into the society. ऐसे ऐसे कह के लिखवाया जाता है. And due to this sometimes the judge get inclined to that statement and give a little bit relief. If he is convicted for 10, might be possible he'll be convicted for 8 years, 7 years, 9 years.
कुछ तो रिलीफ मिलेगी बॉस, कुछ तो मिलेगी। अगर 3 साल के हो तो शायद 3 साल के अंदर हो तो छोड़ ही देंगे शायद आपको, एडमोनिशन पे, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। समझना इस बात को, दिस इज वाई द कैरेक्टर बिकम्स रेलिवेंट ओवर हियर। ये सेक्शन 52 टू 55 डील करेगा हमारे सामने। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात कर ले तो दिस विल 4 to 14 फॉर यू। कोई चेंज नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, देयर इज नो सच चेंज। अगर मैं एडमिटेड फैक्ट की बात करूं तो यही 17 से 31, 15 to 25 बन जाएगा हमारे सामने, क्योंकि यहां पे जो कन्फेशन है उसे बहुत सेग्रीगेट कर दिया गया है। इट बिकम्स इनटू अ पार्ट ऑफ 2 सेक्शंस ओनली। दैट इज द ओनली सोल रीजन। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ नॉन विटनेसेस की बात करूं तो डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ 26 में आ गया, 32 की जगह। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये कैसे कर लेंगे, वाई वी आर डीलिंग विद बोथ द लॉज। टिल नाउ both the laws has been asked by the examiners. I don't know how to move further, but अभी तो हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए। If I'm not wrong, राजस्थान has come up with the JLO और उसमें उन्होंने चेंज किया है बस, कि they are coming up with, शायद I'm not sure, they have come up with only the new criminal laws. लेकिन we need to consider each and everything because we never know what type of question and from which act will they ask. तो कनेक्टेड फैक्ट 4 to 14 हो गया इन BSA। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ BSA 15 to 25, 26 to 27, अब 34 to 39 इट गोज टू 28 to 32। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मुझे ऊपर के सेक्शंस देखने पड़ रहे हैं और मैं उसी से कंसीडर कर लेता हूं कि व्हाट इज द चेंज ऑफ द लॉ इन जजमेंट। शायद एक में डाल दिया, इट बिकम्स 33 फॉर यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, जजमेंट तो पूरा है। स्टेटमेंट और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक सेक्शन आता है 39, नॉट बिकम्स 33, वो नॉन स्टेटमेंट में जाता है क्योंकि जजमेंट 33 हो गया, 34 to 39, 34, 30, 38। Now this is a basic calculations. ये कैलकुलेशन हमें टाइम टू टाइम पे पता चल जाएंगे, विल बी इनटू द प्रैक्टिस ऑफ द सेम। ये इसमें कोई चीज नहीं है, 39 to 45 हो जाएगा ये, और ये 46 to 50 हो जाएगा। Now this is not that important. आपकी क्या पहले क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, दैट इज द क्वेश्चन। एंड वी हैव reached to the conclusion of the first question. What fact may be used in evidences? We have seen what is the fact and issue, what are the relevant facts, how the relevant facts are relevant over here. हमने ये सारे पॉइंटर्स इसके अंदर देख लिए। Now another question comes in front of us कि how to prove this. हमने ये तो देख लिया what facts may be used in evidence. Okay boss, but how to prove? मेरा जो कल सेकंड क्वेश्चन था यही तो था कि मैं इन क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करूं। तो मेरे पास यहां पे 3 सेगमेंट आते हैं प्रूव करने के लिए। आई हैव 3 सेगमेंट्स टू प्रूव ओवर हियर। एक, जजमेंट नोटिसेबल, या मैं इसको इंडियन एविडेंस एक्ट या BSA के टर्म्स में बोलूं, जुडिशियली नोटिस। अगर कोर्ट ने ही पहले से कंसीडर कर रखा है किसी इश्यू को तो हमें वो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप मेरे साथ सेक्शन 56 to 58 देख लेना इन इंडियन एविडेंस एक्ट। इफ द लॉर्डशिप हैज ऑलरेडी टेकन इनटू द कंसिडरेशन एनी फैक्ट, यू नीड नॉट टू प्रूव दोज। 58 तो एक पूरी बकायदा लिस्ट देता है कि whether it is a public road, whether it is a map, whether it is a treasure, whether it is a gazette, whether it is this, whether it is that. एक क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछा जाता है कि क्या न्यूज़पेपर भी कंसीडर करेंगे? कुरान मुल वर्सेस इस्लाम काटा का जजमेंट है इस पे पूरा।
Supreme Court has delved all those three sections into detail for this particular segment. बट हम ये यहां नहीं देखेंगे, वहीं पे देखेंगे व्हाट डज एक्चुअली द जुडिशियल नोटिस मींस। मैंने कहा कि आपको फैक्ट प्रूफ करना है। आपने ये तो देख लिया कि फैक्ट को हम यूज कैसे कर सकते हैं एविडेंसेस में, तो मैंने सबके एक एक एग्जांपल आपके सामने लैंड आउट कर दिए। बट दूसरा क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि मैं उसे प्रूफ कैसे करूंगा। तो जुडिशियल नोटिस में मैंने कह दिया कि इफ योर लॉर्डशिप हैज टेकन इनटू कंसीडरेशन एनी फैक्ट, कि उन्हें लगता है कि हाँ ये नोटिस के लायक है, लेट्स टेक इट इनटू द कंसीडरेशन, यू नीड नॉट टू प्रूव योर मिस्टर प्रोसिक्यूशन। आपको प्रूव नहीं करना है मिस्टर प्लेंटिफ और दी अदर पार्टी, आइदर पार्टी ऑफ एनी ऑफ इट। दूसरा रीजन, हाउ टू प्रूव, यू हैव दी ओरल एविडेंसेस। आपके पास ओरल एविडेंसेस भी तो हैं। ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट, हियर्स एविडेंसेस मस्ट नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। जिसने भी बेसिक एविडेंस सुना है उसने ये बातें तो पढ़ी है। तो ये ओरल एविडेंसेस का रूल रहेगा प्रूफ करने में। ओरल एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, यस, द बेस्ट एविडेंसेस। गो एंड चेक सेक्शन 59, 60, 69 तो एक्सेप्शन क्रिएट करता है ईयरसे के लिए। मैं जब उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा पूरे सेक्शन का, आई विल बी टेलिंग यू हाउ द वर्ड हीयरसे एविडेंसेस कैन बी एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 60। मैं आपको वहां पे रियल एविडेंस की डेफिनेशन भी दिखाऊंगा लाइव इंटरप्रिटेशन से, कि वहां पे रियल एविडेंस की डेफिनेशन भी दी गई है। द वर्ड रियल एविडेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन एविडेंस एक्ट, but still people are searching for their definition, but I'll be telling you the definition into the proviso of section 60 of the same. The third segment for us is documentary evidence. Now this become very important. भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इसका डोमेन थोड़ा सा एनरिच कर दिया, बिकॉज दे हैव स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। अब क्वेश्चन लोगों में आज भी ये है कि वेदर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स or are the same, one and the same thing. My friends, the electronic evidence is the part and the parcel of the documentary evidences only. So do not get confused. Do not get confused at all. इंटरव्यू में बोला जाएगा ये, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अमेंडमेंट खेला था। Now the whole act has been passed. वो तनवीर का जजमेंट हो, वो ब्रूनो का जजमेंट हो, वो पीके अहमद का जजमेंट हो, वो सारे जजमेंट्स हमने अपने लॉ में कवर कर दिए हैं। The parliament has taken into the consideration all those judgments and passed a very beautifully designed the Electronic Evidence Act का provision. This is what we have in documentary evidences. Now question comes कि हम documentary evidences में देखेंगे क्या क्या, क्योंकि इफ वी टॉक्ड अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, मैं इसको यहां कंसीडर कर लेता हूं, तो ये हमारे पास 60 to 78 चलेगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये कैसे, या फिर मैं तो इसको टिल 100 तक भी लेके चल सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो वो सारे इसी से डील कर रहे हैं। व्हाट डज इट सेज? गो एंड चेक प्राइमरी एविडेंसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको 61 से 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में तो यही समझा जाएगा। आपको मैं सेक्शन साथ में लिखूंगा, सॉरी फॉर दिस। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में आपसे जिक्र किया जाएगा। फिर आपसे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड या अनअटेस्टेड के बारे में बात की जाएगी। This topic becomes very important for us to understand, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है। अगर उन्हें मॉडरेट पेपर से टफ की तरफ सिलेक्ट करना है पेपर मेंस का, तो क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम इट, डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर 40 नंबर का एविडेंस एक्ट दे रहे हो वो, तो यहां से क्वेश्चन स्किप कर दें, द पेपर इज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रेलिवेंसी बहुत यूट्यूबर्स, बहुत कोचिंग्स 10-10, 20-20 दिन पढ़ा के स्ट्रांग करा देगी, शायद रटवा देगी। दिल मेक यू मग अप ऑल दो सेक्शन। आई डोंट नो व्हाई पीपल मग अप, बट हो जाएगा आपका। बट इसकी टेक्निकलिटी कौन समझाएगा?
इस प्राइमरी और सेकेंडरी के प्रोविजंस याद कर लो, इसकी हो या रेलिवेंसी की टेक्निकलिटी हो, कौन बताएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट a subject to mug up, it is a subject to be understand because it is based on common sense and logic. तो ये हमारे सामने होगा. Then we'll have the public and private. ये भी तो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है भाई. आपके पास आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसने एक आपको रिसिप्ट बना के दी that this person is a 40% डिसेबल और इम्पेयरमेंट, और आपने वो अपने एग्जाम में लगा दी इनटू दी क्या कहते हैं फिजिकली डिसेबल के सेक्शन में, यू गेट दी रिजर्वेशन कोटा फॉर द सेम. तो वो डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाना पड़ेगा ना. अब क्वेश्चन आता है साहब वो मैं डॉक्यूमेंट कैसे लूं? क्योंकि इट हैज बीन साइंड बाय द पब्लिक ऑफिसर, इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी. रिट पिटीशन में अपने लगानी पड़ेगी ना, तो लगानी पड़ेगी. तो दैट इज व्हाट दी हाउ टू प्रूव. दैट इज व्हाट माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, हाउ टू प्रूव. टेप रिकॉर्ड किया गया था, ओरल एविडेंसेस में आएगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आएगा? RM मलखानी का जजमेंट बताऊंगा इस पे मैं आपको. क्वेश्चन यहीं पे घूम रहे हैं सारे. ऑल दोस क्वेश्चंस आर हियर ओनली. अगर मैं पब्लिक और प्राइवेट की बात करूं तो हमारे पास प्रिजम्पशंस भी आती है. आपने मुझसे पूछा कि मैं सर्टिफाइड कॉपी पे कैसे भरोसा कर लूं. योर लॉर्डशिप हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ टू trust on your certified copy, how to consider that. तो इसमें क्या ही है your lordship, either you have not read the section 7(9) of Indian Evidence Act that says the certified copy is a genuine. Presumption है, shall presume है, unless and until the contrary has been proved. Contrary prove करे सामने वाला, हम क्यों करेंगे? Rebuttable presumption है, कर लो proof. कौन मना कर रहा है? ये भी, इसमें भी हम डील करेंगे. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल सो दैट कि जब मैं इंडियन एविडेंस एक्ट में चलूं तो यू गेट अ गुड फन. अभी शायद थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, बट एक रफ ओवरव्यू लेने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या. मैं वो वाले सेगमेंट में नहीं जाऊंगा दैट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेक्शन 1. नो, इट विल नॉट हेल्प यू आउट. वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल पार्ट्स इनटू व्हिच द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन डेल्विंग इन. इसके बाद आप एक सेगमेंट और पढ़ोगे यहां पर, स्पेशली एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ये इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए आई हैव रिटन इनटू द डिफरेंट एट डिफरेंट साइड. आप ओरल एविडेंसेस की वैल्यू नहीं करोगे व्हेन यू विल बी हैविंग अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. जब आप मेरे साथ सेक्शन 91 पढ़ोगे तो मैं वहां पढ़ाऊंगा वे द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर प्रॉपर्टी और अदर डॉक्यूमेंट्स. अगर ये सारी चीजें दी हुई है तो व्हाई टू प्रेफर द ओरल एविडेंसेस बॉस? जब मेरे पास टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं क्यों ओरल एविडेंसेस पे डील करूंगा? लेट्स हैव द वर्ड टू वर्ड. कोर्ट रूम टू क्लासरूम का भी यही विजन है. कोर्ट रूम में भी यही होता है. योर लॉर्डशिप गेट्स फ्रस्ट्रेटेड विद द आर्ग्यूमेंट्स. Your lordship says that the order has been reserved, the judgment has been reserved. Till Friday, you give me your written submission. I'll take it into the consideration and will pass the order on Monday or by Tuesday. Lordship has, what lordship has done? Taken into the consideration. What? The written submission will be taken into the consideration. ओरल पे भरोसा इतना कर कहां रहे हो जब आपको रिटर्न सबमिशन मिल गया लॉर्डशिप. This is, I'm giving a certain kind of an example. Now we are moving towards, अगर हम इसके sections में भी notice करें तो we have 51 to 53 for the same, 54 and 55 इसमें कोई क्रक्स नहीं. 56 to 97 जहां तक ऊपर नीचे एक दो सेक्शन हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर. क्या ये पॉइंट कंसिडरेबल है? आगे चले. ओ सॉरी, इट्स 103 नॉट 97, 103. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है. हमने ये देख लिया व्हाट फैक्ट में बी यूज्ड इन एविडेंसेस, हाउ सच फैक्ट्स टू बी प्रूव. बट क्वेश्चन हमारे सामने है बाय whom and in what manner.
उन एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें। ये क्वेश्चन हमारे सामने बार बार देखने को मिलेगा। Now the answer pertaining to this question is very similar to what our Indian Evidence Act is saying. भाई अगर आप कोर्ट में गए हो तो अपना मैटर लेके, अपना प्रोसिक्यूशन लेके, अपना सिविल सूट लेके, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि आप अपना केस सबसे पहले एस्टैब्लिश करो बिफोर द लॉर्डशिप। अगर आप अपना केस एस्टैब्लिश कर रहे हो तो क्या आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है कि आप बताओ कि दिस थिंग हैज हैपेंड with you and that is the only and the exclusively and the sole reason why you came before the lordship? That is what the burden of proof is all about. This means the party will have the party will prove or will establish the matter in issue. This is what burden of proof is all about. अगर मैं बात करूं 101 to 114A तक में ये दिया हुआ है मैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास आता है। दूसरा सेगमेंट इसी में by whom and in what manner I'm saying the burden of proof has been laid on you. I've said that I have come up before the court of the civil matter or whether it is a prosecution matter, and it is on to the party himself to establish his matter. Unless he is stopped. Now the second segment is unless he is stopped. Now this particular provision of estoppel, this is a rule of estoppel. Now this rule of estoppel will be a civil rule. और ये सिविल रूल कैसे रहेगा, कल वी हैव कंसीडर्ड दिस इनटू आवर इशू कि ये सिविल रूल कैसे कंसीडर होगा। हमने कल इसे एक क्वेश्चन में भी यहां पे देखा था, हमने यहां पे इसे देखा था कि लॉ ऑफ एस्टॉपेल विल बी इनटू द एस्टॉपेल। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, 3 क्वेश्चंस के आंसर जब हम दे रहे हैं तो हमारे सामने ये आंसर्स आएंगे टू नो व्हाट एक्चुअली वी रिक्वायर्ड एंड इन व्हाट मैनर वी हैव टू प्रूव। आप बता सकते हो कि एस्टॉपेल के प्रिंसिपल्स पे आप कैसे चलोगे। उसके बाद आपके सामने अगर हम इसके बारे में बात करें तो 115 टू 117, 115 से 117 तक आपके पास ये सेक्शन चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। हम बाद में बात करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कह रहा है इस पर। तो आपके पास अपना केस साबित करने के लिए वजूद होना चाहिए। दैट इज व्हाट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑल अबाउट। आपको आपने प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हम 115 से 117 में डील करेंगे। इसी के लिए आपको विटनेसेस को देना पड़ेगा। इफ गिवन बाय द विटनेसेस, आपको विटनेसेस देने पड़ेंगे। अब ये विटनेसेस कैसे होंगे, क्या ये रिलायबल विटनेस है, क्या ये डम विटनेस है, क्या ये कोइंसिडेंटल विटनेस है, क्या ये ट्रैप विटनेसेस है, क्या ये डिकॉय विटनेसेस है। हम इन विटनेसेस को भी एक्सप्लिसिटली डील करेंगे जब हम सेक्शन 118 पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि जब तक हम इन विटनेसेस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम उनको एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। विटनेसेस को हमें वो विटनेसेस की रिलायबिलिटी नहीं पता होगी। वे विल नॉट बी एबल टू नो कि वो इंटरेस्टेड विटनेस है, इंजर्ड विटनेस है हमारे लिए, उसके स्टेटमेंट की कोऑपरेटिव वैल्यू कितनी होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे और ये 118 से 134 तक डील करेंगे। कितने विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है, क्या नंबर ऑफ विटनेसेस वैल्यू करते हैं कि क्वालिटी। सेक्शन 134 देखेंगे हम एक साथ कि नंबर ऑफ विटनेसेस से कुछ नहीं होगा योर लॉर्डशिप। विटनेस एक ही हो चाहे, बट विटनेस कॉर्पोरेटिव वैल्यू का होना चाहिए, रियल एविडेंशियल वैल्यू होनी चाहिए उसकी। फिर हमारे पास एक सेगमेंट आएगा जहां पे एवरी विटनेस शैल बी द सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। आपको सबको जीरे करनी पड़ेगी, आपको सबको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। वी आर गेटिंग अ मैसेज बैक टू बैक, हम मैसेजेस का आंसर आफ्टर द क्लास करते हैं, लास्ट में देखेंगे मैसेजेस, बिकॉज विल नॉट बी एबल टू फिनिश द सेशन इनटू द टाइम एंड वी विल, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास।
सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन है, हम 15 मिनट में सेशन खत्म करेंगे। सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन है, एंड द लास्ट वी हैव अनदर थिंग, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस टू मिस्टेक। ये लास्ट सेक्शन था अभी तक हमारे पास, लेकिन अब इन्होंने एक सेगमेंट और बढ़ा दिया हमारे लिए भारतीय साक्षर अधिनियम में, रिपील एंड सेविंग। ये हमारे इस क्वेश्चन से बाहर हो जाता है, जिन क्वेश्चंस का हम आंसर दे रहे हैं ये उससे बाहर हो जाता है, ये सिर्फ बीएसए से डील कर रहा है। नाउ दिस इज 135 to 166 and this is 167, but if we talk about the भारतीय साक्षर अधिनियम तो ये 104 से 120 हो गया हमारे पास, ये 121 से 123 हो गया हमारे पास। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रहा हूं, देयर इज नो सच चेंजेस। ये 124 से 139 हो गया, ये 140 से 168 हो गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 169 हो गया, एंड दिस बिकम्स 170। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। नाउ वी हैव गिवन द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन जो हमने अपने पहले सेशन में खड़े करे थे, और यही हमारा पार्ट था इंडियन एविडेंस एक्ट का, स्पेशली पार्ट 1 ऑफ आईए 1 to 55 हम यही तो डील कर रहे थे। पार्ट 2 ऑफ आईए 56 to 100 हम यही तो डील कर रहे थे, और पार्ट 3 ऑफ आईए which means 101 to 167। लेकिन अब ये सेगमेंट बदल गया है। नाउ वी हैव 3 पार्ट्स आईए के अंदर, इन बीएसए नाउ दिस बिकम 4 पार्ट्स। मैं इसको इसमें लिख देता हूं 4 पार्ट्स, एक पार्ट बढ़ गया है, और वो पार्ट 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्रेक हुआ है, बस ये ध्यान रखना। पार्ट 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्रेक हुआ है। पार्ट 1 में आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखते हैं और वो रेलिवेंस फैक्ट होता है। अब मैं यहां पे अगर मेंशन कर दूं तो ये पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 ऑफ बीएसए हो गया, और इसके सेक्शन आपके इसके तो 1 और 2 हैं, और इसके सेक्शन आपके 3 से लेके 50 तक है। आपके पास इसके सेक्शन क्लियर है। ये आपका पार्ट 3 बन गया, और ये 51 से लेके 103 तक है, और ये आपका पार्ट 4 बन गया। ये जो 104 to 170 तक है। नाउ दिस बिकम दिस इज द ओनली माइन्यूट चेंजेस वी हैव। एक और चेंज है, अभी तक हमारे पास टोटल 11 चैप्टर थे, अभी चैप्टर भी हमारे पास इंक्रीज हो गए, अभी चैप्टर भी हमारे पास इंक्रीज हो गए। ये चैप्टर अब हमारे पास 12 हो गए। 167 सेक्शंस थे, 170 सेक्शन बन गए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इज बीएसए। We are concluding the session over here. Till then, if you have any queries, if you have any questions, please feel free to ask. If you have any questions, if you have any queries, feel free to ask. This is what courtroom to classroom. If you need any detail of this, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। This is the connection. We have completed 2 sessions and we'll be completing another session by tomorrow's date. आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं if you are interested enough for this. Very nominal fees we have. Yes, we take the fees, but it is very nominal. If you have any questions,
questions or any queries, please? Should we wind up the session? No queries, no questions? ठीक है, वी आर वाइंडिंग अप द सेशन. कल रहेगा, आज शाम को कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है ही. कॉन्स्टिट्यूशन हम कवर कर ही रहे हैं, बाकी उसके आगे हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच.